Hello, my dear student of standard 6th. Welcome back once again. And today we are going to start. That is chapter number 5, In Search of Peace, Buddha and Mahavir. So we are going to cover two great personality in this chapter. One is Gautam Buddha and second is Mahavir Swami. Okay, and this chapter I am going to cover into two parts. So first part is related to Gautam Buddha and second one is related to Mahavir, about their life story, what teaching they done, how what work they did. Actually, still we are remembering them. All are going to be the part of this chapter. Okay. So this is how your first page look alike. So name of the chapter is given, In Search of Peace, Buddha and Mahavir. In the 6th century BC, important reforms were done in social and religious sector of India. In 6th century, some reformers worked against the social evils that had entered the social and religious area. Along with it, they worked for removal of the social inequality and immoralities. Gautam Buddha and Mahavir Swami are the main ones. We will try to understand the life of the Gautam Buddha and Mahavir Swami and their pursuit and humanity establishment by them. So 6 BC means 2000 years of AD and 600 years goes back. So आई थिंक 2600 years पहले की बात है. हमारा भारत जो था ना, उसके अंदर बहुत सारे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स चल रहे थे. इसमें जो कुछ रिफॉर्म्स है ना, वो समाज के अगेंस्ट थे. कुछ चीज़ें थी जो मतलब सही नहीं थी. एंड और वो सोसाइटी में से जो इनइक्वालिटी है, जो अच्छी बातें नहीं है, उन सबको कुछ लोगों ने हटाया. एंड जी हाँ, ये लोग वही हैं गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी. इन्होंने इंसान की लाइफ को बदलना शुरू किया और एक अच्छा समाज बनाने की शुरुआत की. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज द इंट्रोडक्शन एंड एग्जैक्टली बिलो माय इमेज यू विल फाइंड गौतम बुद्ध. ओके, गौतम बुद्ध इतनी आसानी से नहीं मिलते. एनी हाउ, वी गौतम बुद्ध, we obtain a lot of information about Gautam Buddha and Buddhism from the Jatak Katha of Buddhist text of Tripitaka, Sukta Pitaka, Vinay Pitak and Abhidham Pitak. So these are the three books and यहाँ से हमको सारी गौतम बुद्ध की जानकारियाँ मिलती हैं. About 550 Jatak stories and associated with the pre-birth of बुद्ध. ऐसी भी बहुत सारी बुक्स हैं. आगे बढ़ते हैं. देयर वॉज ए किंगडम कॉल्ड कपिल वस्तु इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस. हिमालय जहाँ से शुरू होते हैं उसको फुट हिल्स कहते हैं. एंड वहाँ पर एक किंगडम था दैट इज कॉल्ड कपिल वस्तु. वेल गोइंग डाउनवर्ड नेपाल, द क्षत्रिय ऑफ कपिल वस्तु कॉल्ड सक्यास. तो जितने भी लोगों का आज की तारीख में सक्यास सरनेम है, ये सारे कपिल वस्तु के ही वंशज है, वी कैन से. एंड ये आई थिंक बिल्कुल नेपाल के पास में था. इट वॉज अ रिपब्लिक. रिपब्लिक मीन्स एक तो होता है मोनार्की सिस्टम, दूसरा होता है रिपब्लिक. सो इट इज़ अ रिपब्लिक. शुद्धोधना वॉज द हेड ऑफ द रिपब्लिक. सो हु इज द हेड? शुद्धोधन. माया देवी वॉज हिज वाइफ ऑफ शुद्धोधन. सो लिसन, शुद्धोधन एक वहाँ का मिनिस्टर था, हेड था, यू कैन से. And Maya Devi was his wife. Gautam Buddha was born in a house of Shuddhodana and Maya Devi in 566 BC. So exactly they are remembering the date also. Okay, इनके घर में गौतम बुद्ध का जन्म होता है. And his childhood name was Siddharth. So what was his childhood name? Siddharth. हमारे यहाँ पे भी सब घर पे बच्चों को अलग अलग नाम से बुलाए, टिंकू, पप्पू, सोनू, मोनू, पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं. I think Siddharth was his childhood name. After few days of his birth, his mother Maya Devi died. So unfortunately इनकी मदर की डेथ हो जाती है. ठीक है. Before he was nurtured by Gautami Mahaprajapati, who was his foster mother.
आई थिंक शुद्धोधन जी ने दूसरी शादी कर ली होगी, एंड गौतमी महाप्रजापति ने उनको पाला पोसा होगा. ओके. From young age, Siddhartha was associated with an education and knowledge. Next to Kapilvastu, there was a monastery of a saint named Ala, Alara Kalam. Alara Kalam was his guru. Siddhartha went to his ashram. Here he did meditation. Siddharth's father was worried as he was continuing to discuss of knowledge and samadhi. He was worried about would become a monk. Siddhartha was married at a young age. His wife's name was Yasodhara, and he also had a son named Rahul. Okay. So बहुत यंग एज से ही उनको मतलब एक तो थे तो होशियार, ऊपर से इनको एजुकेशन और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा था. सो इनके फादर ने अलारा कलाम नाम के एक जो विद्वान संत थे उनके पास उन्होंने ज्ञान लेने के लिए भेजा. अब ये उनके गुरु थे अलारा कलाम, और सिद्धार्थ उनके आश्रम में जा रहा था. वहाँ पे उनको मेडिटेशन सिखाई गई, थोड़ा बहुत और नॉलेज दिया गया. सिद्धार्थ अब जब भी इतनी बातें करते थे ना समाधि के बारे में, ज्ञान के बारे में, तो सिद्धार्थ के फादर को एक चिंता होने लगी कि कहीं ये जाके कोई धर्म गुरु ना बन जाए. एंड उनके फादर को ये मंजूर नहीं था. सो व्हाट ही डिड, उन्होंने उनको कम उम्र में ही लपेट दिया मीन्स शादी कर दी. एंड ऑफ कोर्स हिज वाइफ नेम वाज यशोधरा, एंड इनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था राहुल. ओके, फर्स्ट स्लाइड इज ओवर. आई थिंक ये सबको क्लियर होगी. ओके. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, गौतम बुद्ध का फोटो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में दिया हुआ है. ओके, देयर इज अ समथिंग शाइनिंग बिहाइंड हर हेड, उसको हम ऑरा बोलते हैं, उसके इंसान का तेज बोलते हैं. वो जो इंसान बहुत प्योर सेज होता है ना, प्योर आत्मा होता है, उसका चेहरा चमकता है. ओके. होम सेक्रीफाइस एंड साधना. तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने घर का त्याग क्यों किया, उन्होंने साधना में क्यों फोकस किया. दिस पैराग्राफ इज गोइंग टू बी द एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट वन, सो यू बी केयरफुल. At this age of 30, he decided to renounce his royal family and state, become a saint or hermit in search of truth. अच्छा, तो 30 की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सब परिवार महल ने ये सब कुछ मैं त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा, और मैं सच की तलाश में जाऊंगा. मैं अपने आप को साधु बना लेता हूँ. One night he took his chariot Channa and horse Kanthak and went to the river bank outside his state. अब आप लोगों ने बोलेगा ऐसा डिसीजन कोई इंसान क्यों लेगा, तो वेल उसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा. विद हिज चैरियट जो मतलब घोड़ा गाड़ी चलाता है, और उसका जो घोड़ा था कंथक, इनके साथ ये नदी के मतलब पार राज्य में घूमने निकलते हैं. लिविंग इज royal attire, he gave all his jewelry Channa in order him to take Kanthak along with him and return to the place. He himself wore authentic clothes, hermit, and walked toward the jungle. So not flashback, वापस आ जाते हैं. ये डिसाइड कर चुके हैं कि ये लोग सब कुछ त्याग देंगे. ये अपने घोड़े और अपने घोड़ा गाड़ी वाले के साथ आते हैं, छन्ना के साथ. नदी पार करके ये उनको अपने सारी ज्वेलरी दे देते हैं और कहते हैं अब आप घर जाओ, मैं अब यहाँ से एक साधु की ज़िंदगी जीऊँगा. और वो जंगल की तरफ चल पड़ते हैं. सो लेट मी रीड दिस पैराग्राफ. वन मोर पैराग्राफ आई एम सपोज टू रीड. सो आफ्टर लिविंग हिज होम ही वेंट टू राजगीर एंड देन टू द पुरावेला. He started penance with 5 Brahmins. He felt that giving up food and water and tormenting the body would not yield knowledge. Conquering the path of self-consciousness and desire is the
मेजर ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बींग्स लिविंग 5 ब्राह्मण ही डिसाइडेड टू डू पेनेंस अलोन। तो पहले तो ये क्या करते हैं, जैसे जंगल में आगे बढ़ते हैं, राजगीर नाम की जगह पर जाते हैं, फिर पुला विला में जाते हैं, फिर कुछ इनको अपनी तरह कुछ 5 ब्राह्मण और मिलते हैं। अभी 5 ब्राह्मण हैं, इनके साथ ये एक तरह से पेनेंस कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये कुछ सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, ही फेल्ट दैट गिविंग अप फूड एंड वाटर एंड टॉर्मेंटिंग बॉडी वॉज नॉट यील्डिंग नॉलेज। तो ये सब चीज़ों का त्याग करके मुझे नॉलेज नहीं मिल जाएगा। तो उनको थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब ये 5 ब्राह्मणों के साथ क्यों परेशान करना, टास्क मेरा है तो मैं ही इसे कंप्लीट करूँगा, ब्राह्मण देवताओं को परेशान करना ज़रूरी नहीं है। सो ही डिसाइडेड कि इन 5 को भी छोड़ दो और आई विल डू माई ओन पेनेंस बाय माई ओन। ओके, किसी और को परेशान नहीं करना है। सिटिंग अंडर द पीपल ट्री एट द बोध गया ही स्टार्टेड साधना फॉर ट्रूथ एंड एनलाइटमेंट। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, बिल्कुल जैसे मैं बैठा हूँ बिल्कुल सीधे, और यू कैन सी पाँव के ऊपर पाँव चढ़ाया हुआ है और कोई हाथ की कोई मुद्रा है। अफकोर्स ये कुछ ऐसी मुद्रा है, पर क्या है वो वी डोंट नो। और ये साधना शुरू करते हैं। आफ्टर मेनी डेज ऑफ साधना ही गॉट एड नॉलेज ऑन द डे ऑफ वैशाख पूनम। ऐसा माना जाता है कि अपनी साधना में विलीन रहे, है ना। मैं भी बिल्कुल साधना वाले पोज में हूँ। एंड यहाँ पर इनको वैसाखी पूनम, मैंने जो हिंदू कैलेंडर जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा, वैसाख के पूनम के दिन इनको ज्ञान होता है। ऑन एक्वायरिंग द नॉलेज ही बिकेम द बुद्ध एंड फ्रॉम सिद्धार्थ। सो ऐसा माना जाता है, तब तक तो वो सिद्धार्थ थे, लेकिन यहाँ से वो बुद्ध बन जाते हैं। बुद्ध मीन्स कॉन्शियस एंड वाइस। बुद्ध का मतलब होता है कि हम लोग बिल्कुल जागरूक हैं और बहुत चालाक भी हैं। लेटर ऑन ही वॉज कॉल्ड गौतम बुद्ध, एंड फिर बाद में लोग इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जानने लगे। प्रीचिंग। आफ्टर अटेंडिंग द एनलाइटमेंट बुद्ध वेंट टू सारनाथ एंड वेयर ही मीट विद हिज ओल्ड ब्राह्मण फ्रेंड। तो बाद में इनका जब जैसे ही इनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, ये सारनाथ जाते हैं, वहाँ पे अपने कुछ ब्राह्मण मित्रों से मिलते हैं जो उनके पुराने मित्र होंगे खास। द फर्स्ट टाइम ही प्रेज दोज 5 ब्राह्मण्स मॉन्क्स एट सारनाथ। सारनाथ ऑफकोर्स बिहार में एक जगह है, एंड यहाँ पर ये उनको जाके शिक्षा देते हैं। बुद्ध दिस फर्स्ट प्रीचिंग आर कॉल्ड धर्म चक्र परिवर्तन। ओके, बहुत बड़ा नाम है। सेकेंड लाइन में धर्म चक्र परिवर्तन, बुद्ध गेव अ वेरी सिंपल sermon एंड गेट राइड ऑफ द मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड। गौतम बुद्ध ने कुछ सिंपल से चीज़ें बताई जिसको हम लोग अगर फॉलो करें तो हम लोग दुनिया की सारी प्रॉब्लम से फ्री हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू हिम देयर वेर 4 आर्य ट्रूथ्स। जो उनके हिसाब से 4 ब्रह्म ज्ञान होते हैं जो इंसान को समझने चाहिए। चलो चारों को पहले पढ़ लेते हैं एंड फिर सबको अच्छे से एनालिसिस करेंगे क्या होता है ये। वेल, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिजरीज। द कॉज ऑफ सफरिंग इज द ग्रीड एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर। डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग इज रिनाउंसिएशन ऑफ डिजायर। अडॉप्टेशन ऑफ octagonal path Ashtang eliminate desire, and these 4 explain the Buddha are known as the Buddhist principle, are also known as the Samyak Darshan. And सम्यक दर्शन का सम्यक मीन्स प्रॉपरली हमको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। 8 चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो हमको पिंक बॉक्स में दी गई है। सम्यक साइट, सम्यक रिजॉल्व, सम्यक स्पीच, सम्यक डेट, सम्यक अर्निंग, सम्यक एक्सरसाइज, सम्यक मेमोरी, सम्यक समाधि। सम्यक इज अ संस्कृत वर्ड एंड सम्यक मीन्स प्रॉपरली। सो गौतम बुद्ध जी ने हमको 4 ज्ञान की बातें बताई थी। नंबर 1 में ये बताया था दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिजरीज, यानी हम यहाँ पे हर कोई इंसान परेशान है। दुनिया में अगर कोई इंसान को पूछो ना तुमको कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएगा, वो मतलब तुमको एक नहीं बताएगा, वो तुमको बाल्टी भर कर क्या मीन्स ही विल गोइंग टू टेल यू द लॉट ऑफ मिजरीज, है ना।
कि मुझे घर बनाना है, मुझे शादी करनी है, मुझे कार लानी है, बताते रहेगा ना। मेरा फ़ोन पुराना हो गया है, मतलब तुमको लिस्ट पर बता देगा कि मेरे को इतनी सारी तकलीफ़ें। नंबर 2, द कॉजेज ऑफ द सफरिंग इज ग्रीड एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर। चलो, ये बात भी सही है। ग्रीड कहीं ना कहीं लालच होता है। सपोज करते हैं मुझे अभी एक कार लेनी है ना, एक्चुअली में कोई ज़रूरत तो नहीं है, बट मान लो मेरे अंदर एक डिज़ायर आई कि मेरी भी एक कार होनी चाहिए, मैं भी कार में घूमूंगा। तो देखो, पहले मेरे मन में एक इच्छा आई, है ना। ये थर्ड पॉइंट उसे बता देगा आपको। डिस्ट्रक्शन इज द सफरिंग ऑफ द रिनाउंसिएशन ऑफ द डिज़ायर, है ना। हमारे पास, हमारे अंदर जो इच्छाएं आती है ना, जो डिज़ायर आती है, वही हमारी परेशानी का कारण है। अगर हमारे दिल में कोई डिज़ायर ही ना आए तो हम लोग कभी परेशान होंगे ही नहीं। सी सिंपल, पहले मेरे मन में डिज़ायर आई कि मेरे पास कार होनी चाहिए, है ना। अब सेकंड पॉइंट पे आओ, तो एक लालच आता है कि यार अब कुछ ना कुछ मुझे पैसे लाने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करूँगा। और अगर नॉर्मल एक्टिविटी करूँगा तो टाइम लग जाएगा, और फिर मैं कुछ ना कुछ गलत काम करूँगा। और यही फिर अगर मैं ला देता हूँ तो अच्छी बात है, अगर मैं ला देता हूँ तो मेरे अंदर और लालच आएगा। आगे किसी और की अच्छी कार देख के मेरा मन होगा कि नहीं, वो चार बंगड़ी वाली कार लानी चाहिए। बट अगर मेरी कार नहीं आती है तो क्या होगा, मुझे दुख होगा। अरे यार, इतने दिन हो गए पैसे जमा करते करते, पर ये कार ही नहीं आ रही है ना। तो दुखों का कारण क्या है, हमारी इच्छाएं, होता है ना। से फॉर एग्जांपल, एज ए स्कूल किड, आप लोग अपने फ्रेंड के नाश्ते में आज आपने देखा कि वो आलू के पराठे लाए, तब अपनी मम्मी को बोलेंगे मम्मी आलू के पराठे बनाओ। मम्मी ने बोला नहीं बेसिया, अब अगाड़ेला ममरा कौन ले, जैसे मीन्स ये जो ममरे हमने बनाए हैं ये कौन ले जाएगा, चुपचाप बिस्किट ले जाएगा। तो आपको क्या होगा, दुख होगा। आपकी इच्छा हुई कुछ खाने की और आपकी मम्मी ने आपको मना कर दिया। तो यही सब होता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध कुछ और बोलते हैं फोर्थ नंबर में, कि हमको अष्टांग मार्ग फॉलो करना चाहिए, जो हमारी सारी की सारी इच्छाएं मार देगी। अष्टांग मार्ग यानी क्या, देखो हमारी प्रॉपर साइट होनी चाहिए। हमको सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, वो अमीर है वो गरीब है वो सब नहीं देखना चाहिए। रिजॉल्व, सबकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी चाहिए। सम्यक स्पीच, हमको बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि किसी को बुरा लग जाए, ठीक है। सम्यक डीड्स, यानी हम जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक ठाक ही काम हो, गलत काम नहीं, मतलब ठीक है। सम्यक अर्निंग, जितना हम लोग कमा रहे हैं बस हम 2 टाइम का खाना खा पा रहे हैं, डेट्स इट, बहुत है, इनफ है, ठीक है। क्या जर रखा है मैकडोनल्ड और डोमिनोज में जाके। आगे बढ़ते हैं, सम्यक एक्सरसाइज। हाँ देखो, हमारी बॉडी, अब देख रहे हो मेरे चेहरे पे वो ग्लो है, क्यों ग्लो है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, रनिंग करने जाता हूँ, जॉगिंग करने जाता हूँ, मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ, एंड दैट्स इट। पानी ज़्यादा पीता हूँ, अनहाइजेनिक खाना नहीं खाता हूँ। लॉकडाउन में तो और अच्छा अच्छा खाना खाया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। सम्यक मेमोरी से आपकी बुद्धि स्ट्रांग होगी। सम्यक समाधि, हमको सुबह उठ के बाबा रामदेव बताते हैं अनुलोम विलोम करना चाहिए, कपाल भारती करना चाहिए, पेट अंदर खींचते हैं, ओके, भावरी करना चाहिए, ये ओम, ठीक है। गायत्री मंत्र बोलना चाहिए, कम से कम सूर्य देवता को पानी नहीं चढ़ा सकते तो उनके सामने बैठ के ओम भूत भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इतना तो हम लोग कर सकते हैं ना। मैं आपको कोई भगवान गौतम बुद्ध की तरह पेनेंस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और कुछ नहीं तो कम से कम ये छोटी मोटी एक्सरसाइज ही कर लो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ गौतम बुद्ध एज ए ग्रेट रिफॉर्मर, ठीक है। इनके बारे में कुछ 4 पॉइंट दिए गए हैं डेट वी आर गोइंग टू सपोज टू डिस्कस, ओके। Gautam Buddha was a great religious social reformer. He worked lifelong to eliminate the pollutants in the religious and society. He had many disciples, and many kings and states were encouraged by his human religion, and he did the following deeds. ये उनके द्वारा की गई कुछ बातें, इन्होंने समाज के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए, उन्होंने बहुत सारी खराब चीज़ों को सोसाइटी में से निकाला, और इनकी इसी चीज़ को देखते हुए बहुत सारे राजाओं ने इनको अप्रिशिएट किया, और बहुत सारे इनके जो शिष्य थे
उन्होंने भी इसको माना। डिनायल ऑफ गॉड एंड सोल, सेकेंड पॉइंट था ऑपोजिशन ऑफ रिचुअल्स, थर्ड पॉइंट है ऑपोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो, एंड फोर्थ में इंपॉर्टेंस ऑफ वुमन। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं, डिनायल ऑफ गॉड एंड सोल। बुद्धा डिफाइन denied God and soul, gave an importance of the karmism. According to him, if there was a God, sorrow would not have been there. Instead of indulging in welfare of the soul, one should live a virtuous life in the present. एक तो गौतम बुद्ध ऐसा नहीं बोलते कि आप भगवान में और आत्मा में बिलीव करना बंद कर दो, पर सारा दिन क्या बैठे बैठे भगवान का नाम ही लेते रहो, है ना। देखो, इन्होंने भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा गया है कि हमको कर्म करने चाहिए, है ना। तो हमारे जो कर्म है, प्रेजेंट में जो कर्म है, जैसे कि मेरा कर्म है एज ए टीचर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस ये मेरा यही कर्म है, मुझे बस इतना ही करना है। चाहे मैं 3 साल तक मंदिर के चौखट पे भी ना चढ़ूँ, पर मैं अपना कर्म तो ठीक से कर रहा हूँ ना। तो भगवान कोई मुझे भस्म नहीं कर देंगे कि भाई तुम मेरे पास हाजिरी लगाने क्यों नहीं आए। भगवान को अटेंडेंस रजिस्टर लेके थोड़ी बैठा है ना। फिर तो सारे पंडितों को मोक्ष मिल गया होता, क्योंकि पूरा दिन उधर ही पड़े रहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि आप अपना काम में फोकस करो। एज ए टीचर मेरा काम है पढ़ाना, तो आप पढ़िए। एज ए स्टूडेंट आपका काम है पढ़ना, तो आप पढ़ो, ठीक है ना। प्रेजेंट में जीना सीखो, डेट इज वॉट गौतम बुद्ध से। सेकेंड पॉइंट, ऑपोजिशन ऑफ द रिचुअल्स। ही अपोज द रिचुअल परफॉर्म्ड इन हिंदुइज्म एंड सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स इन द यज्ञस। हाँ, इसका ये विरोध करते थे कि हम लोग नहीं एनिमल्स की बलि चढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पूजा पाठ तो ठीक है, पर ये जो जानवरों की जो बलि चढ़ाई जाती है ये गलत बात है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उस टाइम पे तो इस्लाम रिलीजन एंड क्रिश्चियन रिलीजन तो बना नहीं था, लेकिन हिंदुओं में ये चीज़ चलती थी, तो उन्होंने इस चीज़ को स्ट्रिक्टली मना कर दिया। ही सेड नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट वैल्यू, मतलब हमको हिंसा करनी ही नहीं चाहिए। द ग्रेटेस्ट ड्यूटी ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग इज टू ट्रीट एनिमल नॉन वायलेंटली। कहीं ना कहीं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग जानवरों को भी अच्छे से ट्रीट करें, ना कि उनको मारे, ना उनकी बलि चढ़ाएं एंड ऑल डेट, ठीक है। सो ओके, opposition of the discrimination of high and low. At this time, Hindu was divided into 4 varnas: Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. Buddha opposed this varna system, and he said that being born in a high family does not mean to make anyone great. He became great by his deed, by his consciousness, by following the path of the truth and non-violence. He highly opposed the discrimination of high and low and prevailing in the society. गौतम बुद्ध जी का ऐसा मानना है कि उस टाइम पे जो हमारे हिंदू धर्म में जो 4 भाग में डिवाइड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है। तो इनका ये विरोध करते थे, ऐसा कहते हैं कि वर्ण सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। अब मान लो वो तो चलो ठीक है, हाई फैमिली में हो गया, तो ऐसा नहीं कि वो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेट बन गए। इंसान महान बनता है उसके कर्मों द्वारा, वो जो काम करता है, ठीक है। एंड अगर हम लोग सच्चाई का रास्ता करें, अच्छी चीज़ें करें, अच्छे काम करें, तो हम लोगों को ऑटोमेटिकली हाई बन देना चाहिए, हाई हम लोग महान ही बन जाएंगे, ठीक है। चलो, तो समाज में इन सब चीज़ों का वो विरोध करते थे। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स, औरतों को सम्मान देना भी उनकी लिस्ट में था। बुद्ध गेव इक्वल इम्पोर्टेंस टू वुमन एज वेल एज मैन। तो आदमी औरत में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। लकीली आज तो ऐसा हो रहा है, पर ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। He said that the path of nirvana is not only for men, women can also achieve nirvana through sadhana and duty. तो जो मोक्ष होता है वो हम लोग भी, ज्ञान जो है वो हम लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सिर्फ मेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वुमेन्स आर ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंस। ओके, अभी जब वर्ड आई गया है निर्वाणा, तो इसका मतलब क्या होता है? ओके, सो उसे भी ज़रा देख लेते हैं, उसको भी ज़रा क्रैक करते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी निर्वाणा अबाउ माई स्लाइड, पिंक लाइन में लिखा हुआ है, बुद्धा अटेंड द एनलाइटनमेंट इन द शैडो ऑफ द बोधि ट्री नियर द वैशाख पूर्णिमा बाय एक्वायरिंग नॉलेज। उनको यहाँ पे जाके मतलब ब्रह्म ज्ञान हुआ था। बुद्ध कंटिन्यू रिफॉर्मिंग द सोसाइटी एंड रिलीजन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने अपना काम जारी रखा। तो
उन्होंने भी समाज को बदला, समाज को बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई एंड ऑल दैट। ही लेड मैनी पीपल टूवर्ड द राइटेस्ट पार्ट, उन्होंने लोगों को सही रास्ता दिखाया। गिविंग प्रीचिंग टू द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ही अपोज द ईटिंग ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड एंड हाई लो डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने कहा आपको सच्चाई फॉलो करनी चाहिए, आपको नॉन वायलेंस वाला तरीका अपनाना चाहिए, पर उन्होंने जो नॉनवेज खाते ना उसका भी उन्होंने अपोज किया, हमको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। एंड उन्होंने जो समाज में ऊंची जात नीची जात थी इसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया। ही डाइड एट द एज ऑफ 18 ईयर नियर द खुशीनारा एंड अटेंड निर्वाण, तो फिर बाद में उनको परम धाम प्राप्त हुआ। 80 साल की उम्र में इनकी डेथ होती है। बट हिज आइडियाज एंड रिलीजन इन स्टिल अलाइव इन द वर्ल्ड, लेकिन उनकी जो कई बातें हैं, उन्होंने जो हमको संदेश दिया है वो आज भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती है। सो फ्रेंड्स, महावीर स्वामी इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट सेशन। आई होप आपको ये सेशन आज इंटरेस्टिंग लगा होगा। यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय एवरीवन।